إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم وعلیکم صل السلام على محمد ورحمۃ وعلى اللہ آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقينا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمدللہ، جیسے کہ پچھلے ہفتے جو ہے مد کے اقسام کو ہم نے دیکھے تھے. مد کیا ہے؟ تجوید کا پہلا رول ہے مد کی اقسام. الحمدللہ ایک ایک کر کے الحمدللہ ہم نے مد اصلی کو بھی دیکھا، جو کہ کیا ہے. مد اصلی جو ہے نیچرل مد ہے، اس میں خسر ہے، 2 حرکات ہی لمبا کرنا پڑتا ہے. الحمدللہ ہم نے اچھے سے دیکھ لیے مد الاصلی الحمدللہ. اور مد الفرعی جو ہے کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس میں مقدار زیادہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے 2 سے 6 حرکت پر بھی کھینچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مد الاصلی مد الفرعی ہے الحمدللہ. تو مد الفرعی میں ہم نے بہت سے رولز دیکھ لیے ہیں، جیسے کہ مد متصل، مد لازم، مد منفصل. اور جو ہے انشاءاللہ آج جو ہے ہم مد صلہ کبرا دیکھیں گے. مد صلہ کبرا الحمدللہ. جو ہم نے مد الاصلی میں جو ہے مد صلہ صغرا کو دیکھے تھے، ہمیں مد صلہ صغرا دیکھے تھے. مد صلہ صغرا، مد صلہ صغرا کیا تھا؟ مد یعنی کہ کھینچنا، لمبا کرنا. صلہ کا مطلب ملانا، جوڑنا. صغرا کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹی، چھوٹی مد. صغرا یعنی کہ چھوٹا. الحمدللہ ہم نے خلخلے میں بھی دیکھا خلخلہ صغرا یعنی کہ چھوٹا. اب یہ چھوٹا بولے تو 2 مقدار ہم کو کھینچنا تھا. الحمدللہ ہم نے دیکھ لیا اس کا رول الحمدللہ. دیکھیں یہاں پر دیکھیں مد صلہ جی حجرہ چھوٹا مد، مد صلہ صغرا. اب یہاں پر ہم نے ایگزامپلز بھی دیکھے تھے. یہ ہا کی ضمیر ہے یعنی کہ الٹا پیش اور کھڑی زیر میں آتا ہے. ہا کے ساتھ ہی آتا ہے. یہ ہا میں الٹا پیش کے ساتھ اور ہا کھڑی زیر کے ساتھ آتا ہے. اس کو 2 حرکات کے برابر ہم لمبا کریں گے. سمجھ میں آ گیا تھا یہ ہم کو اچھے سے؟ جیسے کہ دیکھیں یہاں پر انہو، ہو 1 2 انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا. ایگزامپل نمبر 2 سورۃ الملک آیت نمبر 13. انہو علیم بذات الصدور. انہو، ہو 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے. 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے. لیأکلوا من ثمرہ وما عملتہ وما عملتہ ایدیہم. سمجھ میں آیا؟ ثمرہ. اور سورہ حدید آیت نمبر 11 میں فَيُضَاعِفَهُ فَهُ
लहू फयुदौ फयुदौइफहु लहू वलहू अजरुन करीम। तो ये छोटी मद है, इसको 2 हरकत के बराबर ही हमको खींचना है। ठीक है, इसकी ये क्या था, मिकदार जो है 2 हरकत ही है। मद सिला सगरा, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है हमने मद अल असली में हमने देख लिया था। बस आपको जस्ट रिवाइज कराना था, आपको बताना था कि सिला सगरा क्या है, सिला कुबरा क्या है। अब ये देखें, मद सिला कुबरा। मद सिला कुबरा जो है, मद का मतलब लंबा करना, खींचना, सिला का मतलब मिलाना, जोड़ना। सिला का मतलब मिलाना, जोड़ना। और कुबरा का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बड़ी। सोहरा छोटी, कुबरा बड़ी। समझ में आया? अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है इसका जो सिला सोहरा का कायदा क्या था, मद सिला सोहरा क्या कब होती है, इसकी मिकदार क्या है, 2 हरकत है, इसकी मिकदार 2 हरकत है। जब किसी लफ्ज के इख्तिताम पर है। सिला सोहरा का मैं बता रही हूँ। थोड़ा पीछे जाएंगे हम, थोड़ा गौर कर लें। इसका कायदा आप अगर लिख कर रखे हैं तो मुश्किल नहीं है, वरना मैं एक मर्तबा और बताती हूँ आपको। मद सिला सोगरा कब होती है, इसकी मिकदार क्या है। मद सिला जो है छोटी मद है, इसकी मिकदार जो है 2 हरकत है। जब किसी लफ्ज के इख्तिताम पर, यानी कि एक वर्ड के खत्म होने पर हाँ की जमीर हो और उस पर दोम्मा या कसरा हो, उल्टा पेश या कसरा, ये हाय जमीर से मा खबल और बाद हुर्फ मुतहर्रिक हो, यानी कि हरकत हो, जबर हो, पहले भी जो है हरकत रहनी चाहिए, उसके बाद भी हरकत होनी चाहिए। और हाँ के बाद वाले वर्ड के शुरुआत में हमजा ना हो, हमजा नहीं होनी चाहिए दूसरे वर्ड में। समझ में आया? ये है सिला सगरा का। समझ में आया कायदा जो है, ये सिला सगरा का कायदा है। सिला क्यों कहा गया, क्योंकि वसल की सूरत में होती है, यानी कि मिलाने की सूरत में होती है, वक्त की सूरत में नहीं होगी। समझ में आया? ये सिला सगरा का है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर समझें, मद सिला सगरा कुबरा क्या है। गौर से सुने, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ पर देखें, मद सिला कुबरा, मद सिला कुबरा, मद सिला कुबरा जो है, मद सिला कुबरा जो है बड़ी मद है। इसकी मिकदार जो है 4 से 5 हरकत के बराबर होती है। इसको खींचेंगे हम। अब यहाँ पर देखें, कौन बताएगा ये कौन सी मद है। यहाँ पर हा के ऊपर कौन सी मद है, हमें पढ़े थे, कौन बताएगा। त्वामिही पर कौन सी मद है, कौन बताएगा। त्वामिही, कौन बताएगा मद। जी टेक्स्ट करें, गुलशीन बताएं कौन सी मद है ये। मुनफसिल, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। हाँ बीबी सारा, मद मुनफसिल। हाँ सनाली, सीरत बानू, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हाजिरा, अल्हम्दुलिल्लाह, सबको याद है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मद मुनफसिल है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ शाबाश, आपने भी ठीक बताया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर देखें, गौर करें, तो ही में क्या है, हा है। हमने बताया था कि सोगरा में भी जो है हा की जमीर होती है, और यहाँ पर भी हा की जमीर होती है। ठीक है, हा की जमीर होती है, उसके ऊपर एक मद होता है, मद होता है जो मुनफसिल है। उसके बाद वाले कलीमे में, उसके बाद वाले कलीमे में क्या है, स्टार्टिंग में क्या है, हमजा है, हमजा है। यही है इसका रूल, मद सिला कुबरा। ठीक है, और इसका फायदा नोट डाउन कर लें।
मद सिला कुबरा एक ही हुर्फ है। जब मद सिला के हुर्फ पर खड़ी जेर या उल्टा पेश हो और उसके बाद वाले कलीमे में हमजा हो तो उसे 4 हरकत से पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इजी है। हाँ, देखिए यहाँ पर 4 हरकत के बराबर खींचेंगे, ये हाँ पर ही आता है ये मद। समझ में आ रहा है? इला तुआमिही अन्ना, इला तुआमिही अन्ना, इला तुआमिही अन्ना। यहाँ पर देखें, मालहू, मालहू अखलदह, मालहू अखलदह। ठीक है, मैंने यहाँ पर 4 हरकत ही खींचा है, तो ये 4 से 5 काउंटिंग्स में हम खींच कर क्या करेंगे, पढ़ेंगे इसको। इतना ही है। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आता है? उल्टा पेश यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्लियरली आयतों में आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी मैं आपको। यहाँ पर देखें सूरह आले इमरान आयत नंबर 7 में हुवल्लज़ी, लज़ी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर देखें सूरतुल बलद आयत नंबर 7, सूरह बलद आयत नंबर 7 में यहाँ पर देखें, यहाँ पर गौर करें। अयहसबु अल्लम यरहु, यरहु, यहाँ पर क्या है, उल्टा पेश है, उसके साथ मद है और उसके बाद वाले कलीमे के स्टार्टिंग में जो है हमजा आ रहा है। ये गौर करें, ये गौर करें। यहाँ पर देखिए, यहाँ हाँ है उल्टा पेश के साथ, उसके बाद वाले कलीमे में हमजा आ रहा है। इतना ही है इसका, बहुत इजी है, समझना आसान है, इसको याद रखना बस। ये मद मुनफसिल भी है, ये मद सिला कुबरा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, गौर करें, देखें इसको, देखें। यरहू 1 2 3 4, हाँ हाजिरा, मद के बाद वाले कलीमे में हमजा आना, यही सिला कुबरा है। दूसरे कुछ भी लेटर्स नहीं आएंगे, कौन से भी लेटर्स नहीं आएंगे, यहाँ पर सिर्फ हमजा आएगा। ठीक है, यरहू अहद। जी, सबके लिए स्क्रीन क्लियर है? रेशमा को दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन, क्या सभी के लिए ऐसा ही है? यरहू, हाँ उल्टा पेश है, उसके बाद वाले कलीमा जो है हमजा है। क्लियर नहीं है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़न इज़ा शि'ता सहला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबके लिए आसान करे, आपका सीखना समझना सब कुछ आसान कर दे, आमीन। हाँ, समझ में आया? यरहू, ये हा की ज़मीर है, हाँ पर ही उल्टा पेश और खड़ी ज़ेर आती है, इसको मद सिला कुबरा कहते हैं, मद सिला कुबरा। ठीक है, यरहू अहद। समझ में आया? अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। सूरतुल कहफ आयत नंबर 110 में वला युश्रिक बिइबादती रब्बिही अहद, रब्बिही अहद, रब्बिही, रब्बिही, कौन करें, 1 2 3 4, रब्बिही अहद, रब्बिही अहद। ठीक है, और सूरतुल फुसिलत आयत नंबर 40 पर 1 में ओ मिन आयातिही, आयातिही, 1 2 3 4, ओ मिन आयातिही अन्नका तरल अर्द खाशिअह। समझ में आ रहा है? आयातिही, आयातिही अन्नका। और सूरह दुखान आयत नंबर
22 में यहाँ पर देखें فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَدَعَا رَبَّهُ 1 2 3 4 فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ رَبَّهُ 1 2 3 4 5 भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझ में आ गया होगा। मद सिला कुबरा एक ही हुर्फ में है, वो जो है हा में है। जब मद सिला के हुर्फ पर खड़ी जेर या उल्टा पेश हो, हुँ? और उसके बाद वाला कलीमा में हमजा हो, तो उसे 4 हरकत से पढ़ेंगे। ये इसका कायदा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ईज़ी है। सिला सगरा जो है छोटा मद है और उसको 2 हरकत के बराबर खींचेंगे, और मद सिला कुबरा जो है बड़ा है और इसको 4 से 5 रकात के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है हम इंशाअल्लाह सूरतुल काफिरून की तरफ चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें इंशाअल्लाह ताउज़ और तस्मिया के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक मर्तबा पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर क्या है सूरतुल काफिरून। अल्हम्दुलिल्लाह अब सबको पता होगा इसकी फजीलत, इसकी अहमियत। अल्हम्दुलिल्लाह ये सबको मालूम होगा। ये बहुत फजीलत वाली सूरत है। ये सूरह मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब मक्का के मुशरिकीन ने ये कि इस्लाम जब फैलता जा रहा था बहुत तेजी से और उनका दीन कमजोर होता जा रहा था, उन्होंने उस फैलाव को रोकने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ किस्म की पेशकश यानी कि कॉम्प्रोमाइज की। मिसालन दौलत उनको देने की कोशिश की, औरत और सरदारी, ताकि आप अपनी दावत से रुक जाएं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी
पेशकश को ठुकरा दिया तो उन्होंने दूसरी पेशकश की कि 1 साल मुशरिकीन सिर्फ एक खुदा की इबादत करेंगे और दूसरे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों की इबादत करेंगे। अल्लाह ताला ने इस सूरत में इस पेशकश का बिल्कुल साफ जवाब दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह हम आयतों में देखेंगे। और इसकी फ़ज़ीलत क्या है? इसकी फ़ज़ीलत क्या है? आप सब जानते होंगे कि फ़ज्र और मग़रिब की सुन्नतों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल काफ़िरून और सूरतुल इख़लास पढ़ा करते थे। ये मुस्नद अहमद और तिर्मिज़ी, निसाई, इब्न माजा की हदीस में साबित है। अल्हम्दुलिल्लाह। और और क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा से फरमाया, रात को सोते वक़्त ये सूरा पढ़कर सोया करो, तो शिर्क से बड़ा करार पाओगे, बुरी, ठीक है? शिर्क से बुरी करार पाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह अब तआवुज़ और तस्मिया के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरतुल काफ़िरून की शुरुआत करेंगे। अऊज़ु, अऊज़ु, अऊज़ु। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बहनों का क्लियर हो गया है। इंशाअल्लाह मैं ज़्यादा आपको बताना नहीं चाहूँगी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह तआवुज़ और तस्मिया अच्छे से है आपका। तआवुज़ को एक मर्तबा, बिस्मिल्लाह को एक मर्तबा पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल, कुल, खौफ, कुल, खौफ, खौफ, खौफ। कहाँ से आता है ये? खौफ जो है कहाँ पर रहने वाला है? जी, मेरी आवाज़ सबके लिए क्लियर है? मेरी आवाज़ सबके लिए क्लियर है? जी। खौफ जो है कहाँ पर रहने वाला है? अक्सल लिसान से। हुँ? आप गौर करें, अक्सल लिसान से। अक्सल लिसान बोले तो क्या? हमारी ज़ुबान की जड़। हमारी ज़ुबान जो है, उसकी जड़ जो है अक्सल लिसान, वहाँ से खौफ और कैफ अदा होते हैं। खौफ, खौफ, हुँ? खौफ जो है हुर्फ़े मुस्तअलिया में से है। इसको मोटा करके अदा करेंगे। समझ में आ रहा है? एक तो ये मुस्तअलिया है, ये मोटे पढ़े जाने वाले हुर्फ़ों में से है और दूसरा जो है ये खलखले का भी लेटर है। हाँ, ये जो है हुर्फ़े खलखला में से भी है। कैसे अदा करेंगे इसको? इक़, उक़। इसको साकिन अगर लगा देंगे तो कैसे अदा करेंगे इसको? खलखले की तरह पढ़ेंगे जैसे कि अक़, इक़, उक़ इस तरीके से पढ़ेंगे। ये खलखले का है, दूसरा जो है ये हुर्फ़े मुस्तअलिया में से है। मैं आपको बताती हूँ, बार-बार बताती हूँ कि जब भी मोटे लेटर्स हम पढ़ते हैं, तो हमारी ज़ुबान की जड़ जो है, ऊपर बुलंद हो जाती है। तालु की तरफ बुलंद हो जाती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने मखरज में अच्छे से जाना है। इसको अच्छे से अदा करें और काफ क्या है? बारीक हुर्फ़ों में से है। ये बारीक है, सेम प्लेस है इसकी। ये सेम प्लेस में रहने वाले हैं, एक ही जगह रहने वाले हैं, अक्सर लिसान से ही रहने वाले हैं, लेकिन खौफ जो है मोटा पढ़ेंगे, कफ जो है बारीक पढ़ेंगे, ठीक है? समझ में आया? खौफ, खौफ मोटा करके पढ़ेंगे। अब इसको खुल में अदा करें, खुल, खुल, खुल और लाम को हिलाएँगे नहीं। लाम साकिन है, इसको हिलाएँगे नहीं। ये खलखले का लेटर नहीं है, इसको हम हिलाएँगे नहीं। खुल, 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 या, यहाँ पर क्या है या जो है हुर्फ़े निदा है। या और यहाँ पर कौन-सा कायदा अप्लाई हो रहा है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? या में कौन कौन-सा रूल है? मद जायज़ मुनफ़स्सिल, ठीक है? समझ में आ रहा है? यहाँ पर कितनी हरकत के बराबर खींचेंगे? कितनी हरकत के बराबर? 4। हाँ, हसीना, आपने सही जवाब दिया। इसको 4 हरकत के बराबर खींचेंगे, जैसे कि या, या, हुँ? कुल या अय्युहा, अय्युहा। या तशदीद से है, तो कैसे करेंगे? अच्छे से स्ट्रेस देंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे। हुँ? कैसे करेंगे? अय्युहा, अय्युहा, अय्युहल, अय्युहल इस तरीके से नहीं करें।
अच्छे से प्रेस करें। जब भी शद्दा वाले हुर्फ आते हैं उनको प्रेस करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? अच्छे से मर्ज करना पड़ता है, जैसे कि अय्युहल, अय्युहा, अय्युहा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर हा में क्या है? हुर्फ मद्दा है, लेकिन यहाँ पर रूल क्या है? हमज़तुल वसल है, यानी कि हा को जो है लाम को मिलाएंगे तो यहाँ पर हुर्फ मद्दा का रूल अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है? अय्युहल, अय्युहल। हा कहाँ पर रहने वाला है? उसका मखरज क्या है? कौन बताएगा? हा, 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 हा जो है अक्सल, अक्सल, हलक। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सारे बहनों ने सही जवाब दिया। हाजिरा, शाहिदा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अय्युहा, अय्युहा, हाँ, ज़रीना आपने भी सही जवाब दिया। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अय्युहा, अय्युहल काफिरून। का, का मैं बताइए आपको, काफ जो है बारीक पढ़ेंगे इसको, का इस तरीके से नहीं, काफिरून इस तरीके से नहीं, क, क, हुँ, क, कैट, कैफ़े, कैट, कैफ़े, इस तरीके से जो है काफ को अदा करेंगे, इसको बारीक पढ़ेंगे, इसको जो है मोटा काफ़िरून, काफ़िरून नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? फ़ी, फ़ी, फ़ी क्या है? इसका जो है मखरज क्या है? हमारे सनाया उलिया के दांत जो है सामने के, वो नीचे के होंठों के पीछे हिस्से में, गीले हिस्से में टच करने से। अब कौन बताएगा ये इसका मखरज क्या है? ये कौन-सा मखरज है ये? कौन बताएगा? शफ़तान। शफ़तान में कितने लेटर्स हैं? कितने लेटर्स हैं? 4। हुँ? कौन से? मा, बा, वा, फ। मैं बताई थी आपको, इसको याद करने में आसानी रहने के लिए जो है माँ, बाप, वफ़ा। हुँ? मीम, ब, मीम, वाव, फ। समझ में आया? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये शफ़तान जो है दोनों होठों से निकलने वाले हुर्फ, ठीक है? दोनों होठों को कहा जाता है। लेकिन चारों में से एक हुर्फ जो है एक ही होंठ से अदा होता है। हुँ? एक ही होंठ से अदा होता है, नीचे के होंठ के पीछे के गीले हिस्से से ऊपर के 2 दांत जो है टच होती। दोनों होठों का इसमें काम नहीं है, एक ही होंठ का काम है। ये अच्छे से याद रख लें। 4 हुर्फों को जो है 3 लेटर्स जो है दोनों होंठ यूज़ होते ही, लेकिन 1 लेटर जो है फ़ा एक ही होंठ से अदा होता है। समझ में आया? हाँ, फ़ा एक होंठ से अदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। रोन, रोन में क्या है? कौन-सा तजवीद का रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पर बताएँ? रून, मद आरिद ली सुकून। जी, मद आरिद ली सुकून। قل يا أيها الكافرون كافرون قل يا أيها الكافرون अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझ में आ रहा है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, आयत नंबर 2 ला, ला में क्या है? ला में कौन बताएगा? ला के बाद क्या है? मद मुनफ़स्सिल है, मद मुनफ़स्सिल है। इसको कैसे करेंगे? कैसे पढ़ेंगे इसको? हुँ? ला 1 2 3 4 4 हरकत के बराबर खींचेंगे। ला अब यहाँ पर देखें बहुत सारी बहनों के इसी में मिस्टेक होती है। आइन को हमज़ा की तरह ना पढ़ें, ना झटका दें इसको। कैसे पढ़ेंगे? आराम से आइन जो है वस्तल लिसान हलक से अदा होने वाला है। इसको कैसे अदा करेंगे? आ, 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 हमज़ा फ़तह आइन सुकून अअबुदु ला अअबुदु मा यहाँ पर देखें और एक मिस्टेक क्या होती है हमारे से बुदू ला अअबुदु दु इस तरीके से जो है जल्द से जल्द मा में आ जाना वहां पर थोड़ा भी खींचेंगे नहीं यहाँ पर देखिए अअबुदु इस तरीके से अगर खींच देंगे तो वो क्या हो जाएगा उर्फ़ मदा की तरह हो जाएगा ठीक है वो जो है गलत हो जाएगा तो कैसे पढ़ेंगे
لا अअबुदु मा में क्या है? उर्फ़े मद्दा है, अलिफ़े मद्दा है, 2 हरकत के बराबर खींचेंगे। मा ता ता अब यहाँ पर भी आइन को हमज़ा की तरह नहीं पढ़ेंगे। ताबुदून इस तरीक़े से नहीं, तअबुदून तअबुदून इस तरीक़े से झटका भी नहीं देंगे। इसको आराम से इत्मीनान से अच्छे से पढ़ेंगे। ताबुदून ताए 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 आए ताए कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। आए ताए आए हुँ, समझ में आ रहा है? تعبدون لا أعبد ما تعبدون لا لا أعبد ما تعبدون لا 1 2 3 4 لا أعبد ما تعبدون ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से समझ में आया। अब यहाँ पर देखें, आइन का यहाँ पर मखरज आपको बताया है। यहाँ पर आइन है, 2 मर्तबा आकर है, तो यहाँ पर आपको क्लियरली बताया जा रहा है इसका मखरज। ये हलक का दरमियानी हिस्सा है। इसको वस्तुल हलक कहते हैं, यानी कि हमारे हलक का मिडल पार्ट से अदा होता है। इससे आइन और हा अदा होते हैं। आइन और हाँ, जो है दोनों लेटर्स जो है वस्तल हलक से ही अदा होते हैं। आइन की आवाज में तवस्सुत है, जब मज़मार लिसान यानी कि वस्तल हलक से लगता है, तो आइन अदा होता है, जबकि हाँ की आवाज चलती है बगैर किसी रुकावट के। हाँ क्या है? सांस हमारी क्या है? रुकती नहीं, सांस जारी रहती, जरियान नफ्स हमारी सांस जो है जारी होते रहती है, लेकिन आइन में इस तरह से नहीं होता, हमारी आवाज अंदर की तरफ जाती है, जिससे कि देखिए यहाँ पर आइन आइन आय आय ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, यहाँ पर देखिए हरफ़े हलक़ी की अदायगी में की जाने वाली उमूमी गलतियाँ, जैसे कि नंबर 1 पर आइन जब साकिन हो तो झटका देना, इसकी आवाज़ को ना चलाना, क्या है? जो चलाना आवाज़ जो है हमारी जो इस तरीके से जाती है, लेकिन वहाँ पर अगर आप हमज़ा में साकिन लगे जैसा अगर पढ़ देंगे तो जो स्टॉप हो जाती है। जो स्टॉप हो जाती है, लेकिन आइन में साकिन लग गया और उसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? जो 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 ठीक है? ख़ा में खर्राटे की आवाज़ का ज़्यादा आना, ये हमें नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह जब हा का आएगा तो इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे हमज़ा का, हा का इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर देखें आयत नंबर 3 हुँ? वला अब यहाँ पर कौन बताएगा कौन-सी मद अप्लाई हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर मद मुनफ़सिल हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सारे मद जो हैं मुनफ़सिल ही के हैं, तो आप लोगों के लिए ईज़ी है, 4 हरकत के बराबर खींचे। वला और अन में क्या है? इख़फ़ा है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इख़फ़ा? छुपाना, हुँ? छुपाना, क्या छुपाना? हमारी आवाज़ को छुपाना। कहाँ पर छुपाना? नून कहाँ वाला है? ख़ैशूम। नून और मीम ख़ैशूम में रहने वाले हैं। अपनी आवाज़ को नाक में छुपाना। वअंतुम 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 अंतुम अं इख़फ़ा करें। ठीक है? वला अंतुम अब यहाँ पर तुम में साकिन है मीम पर, लेकिन यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि बाद वाला जो है हुर्फ़े हलक़ी है, इज़हार है वहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे, ठीक है? तो कैसे करेंगे? वला अंतुम आय 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 अब अलीफ़ मद्दा है यहाँ पर, रुफ़े मद्दा है, आइन को थोड़ा खींचेंगे। आबिद आबी आबी आबिदू दू दाल दम्मा वाव सुकून क्या है? वावे मद्दा है, खींचेंगे 2 हरकत के बराबर।
आ में 2 हरकत, दू में 2 हरकत, आबिदून, आबिदून, मा। अब यहाँ पर कौन सा मध्य अप्लाई हो रहा है? यहाँ पर मद क्या है? मुनफसिल है। मा 1 2 3 4 माबुद। दाल में क्या हो रहा है हाजिरा? कौन बताएगा? दाल पर क्या है? हाँ हुस्ना, अल्हम्दुलिल्लाह, दाल पर खलखला है, खलखलाए मुतवस्ता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पढ़ेंगे वला अंतुम आबिदून मा अबुद, बुद, बुद। दाल पर खलखला करें। बुद, स्टॉप नहीं करना, स्टॉप नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे? खलखला करेंगे। वला अंतुम आबिदून मा अबुद, मा अबुद। 2 से 4 हरकत के बराबर खींचकर लंबा करेंगे मद मुनफसिल। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आयत नंबर 4। वला, वला, वला में क्या है? वला में क्या है? मद मुनफसिल, मद जायज मुनफसिल है। वला 1 2 3 4 खींचेंगे। वला अना। ठीक है, ना में क्या है? उर्फे मद्दा है। लेकिन यहाँ पर खींचेंगे नहीं हम, ठीक है, यहाँ पर खींचेंगे नहीं। कैसे पढ़ेंगे? वला अना आबिदुम, अल्हम्दुलिल्लाह। वला अना आबिदुम, वला आबिदुम, दुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आबिदुम में जो है गुन्ना करेंगे, इधर मा गुन्ना है वहां पर गुन्ना करेंगे। आबिदुम, दुम, 1 2 दुम, आबदतुम, आबदतुम, आबदतुम। जी, अबदतुम क्या है? दाल को हम क्या करेंगे? हटा देंगे, वहां पर बा और ता को मिलाएंगे, क्योंकि दाल जो है साकीन है, इसको क्या करेंगे? बा ता। आइन फथा, बा फथा ता शद्दा, बत, बत, अबत, अबत, ता दम्मा, मीम सुकून, तुम, अबतुम, अबतुम। समझ में आ रहा है? ये इदगाम मुतजानिस है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अच्छे से सबको मालूम है। अबतुम, बा और ता को अगर क्या, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरा, तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो ये इदगाम मुतजानिसीन है। तो हमको दाल को साइलेंट करना है, बा और ता को मिलाना है। वला अना आबिदुम मा अबदतुम। अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ सबको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर देखें आयत नंबर 5 में, आयत नंबर 5 और आयत नंबर 3 जो है सेम है। जी, वला में क्या है? इख्फा है। आबिदूना में खींचेंगे, आ में दो में खींचेंगे, मा आबुद में खलखला करेंगे। खलखलाए उस्ता है ये, दाल को साकिन लगाते हुए दाल को खलखला करेंगे, क्योंकि ये वक्फ की हालत में है दाल। तो तो कैसे पढ़ेंगे? वला अंतुम आबिदून मा अबुद, वला अंतुम आबिदून मा अबुद। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब चलते हैं आयत नंबर 6। अब यहाँ पर देखें, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। लकुम, लकुम, लाम, लाम, ला, कुम, लकुम, लकुम दीनुकुम, लकुम दीनुकुम, दी प्रॉपर से करें। दीनुकुम, दीनुकुम। यहाँ पर
नून को ज्यादा खींचेंगे नहीं। यहाँ पर इस आयत में की जाने वाली गलती जो है दीनुकुम, इस तरीके से नहीं करेंगे। लकुम दीनुकुम, 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 ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, वलिय दीन, वलियद, वलियद, इस तरीके से नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे। वाव फतह व, لام كسرة لي، ولي، يا فتحة يا، وليا، 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 वा नहीं पढ़ेंगे, वलिया दीन, दीन, वलिया दीन, दीन में क्या है, मद, आरिदली सुकून है, वक्फ की सूरत में मद। इसको 1 2 3 हरकत के बराबर, 4 हरकत के बराबर भी हम खींचकर लंबा कर वक्फ करेंगे, ठीक है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अल्हम्दुलिल्लाह।